हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। As I had already told you that we are solving the case scenario series in which I'll be discussing the case scenarios that have been uploaded by the institute on the portal. So in this video, we are going to discuss one more case scenario 11, that is purely based on the transfer pricing provisions. Now, transfer pricing is a very important topic for CA final examinations from your international taxation part. So this is a very comprehensive case scenario given by the institute in which they have included arm's length price, 94B provisions that you must have also gone through, associated enterprise, and various different other related provisions, repatriation of excess money in case of adjustment to the total income, etc. So once it's better before solving this question, you revise the provisions of the basic provisions of transfer pricing like arm's length price and adjustment and interest. And I will also be explaining you the provisions as and when required during the question. So let us discuss the case scenario first. On 1st of April 2022, UI Limited, an Indian company, borrowed 50 crores at the rate of 9.5% per annum from M Incorporation, a US entity, ठीक है, thereby increasing its total borrowings to 65 crores. तो जितना हमने इस कंपनी से बोरो किया है वो हमारी टोटल बोरोइंग्स को पहुंचा दे रहा है 65 करोड़ पर। कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हम साथ में पढ़ते पढ़ते करते जाएं। सो हमारी टोटल बोरोइंग्स थी 65, जिसका 50 लाख, जिसमें से 50 करोड़ हमने इस कंपनी से लिए हैं, दैट इज around 76% of borrowings of the particular company are from M Incorporation. The said loan is guaranteed by H Incorporation, a third entity जिसने इस लोन को गारंटी किया है, another US entity. तो हमारे टोटल बोरोइंग्स का आप कह सकते हो 76.9% लोन जो है वो एच इनकॉर्पोरेशन ने क्या करा है, गारंटी करा है कि अगर हमने डिफॉल्ट किया तो एच इनकॉर्पोरेशन इज टेकिंग द गारंटी। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बोथ एम एंड एच इज इन द यूएसए, ठीक है। द टोटल एसेट्स ऑफ यूआई इज 180 करोड़। तो हमारी जो एसेट्स हैं वो 180 करोड़ है, जिसमें से हमने 50 करोड़ एक ही कंपनी से लोन लिया हुआ है। सो आउट ऑफ आवर टोटल एसेट्स द बोरोइंग which we have taken from M Incorporation is around 27%. बेसिकली मैंने ये वर्किंग क्यों करी है, क्योंकि आप सब लोगों ने एसोसिएट और डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी व्हेन यू हैव डिस्कस ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हेन यू हैव स्टडीड ट्रांसफर प्राइसिंग। सो बेसिकली देयर आर प्रोविजंस कि अगर कोई एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ लोन आउट ऑफ द परसेंटेज ऑफ असेट्स अगर फाइनेंस करती है या गारंटी करती है, तो देन द पर्टिकुलर enterprise is treated to be and deemed associated enterprise. So in this case जो हमारी गारंटी वाला प्रोविजन होता है और जो लोन वाला होता है दोनों हमारे सामने हैं। So I've just written the conditions that are applicable. जब हम गारंटी की बात करते हैं 10% या उससे ज्यादा हमारी टोटल बोरोइंग्स के 10% या उससे ज्यादा की बोरोइंग्स की गारंटी अगर किसी एक दूसरी एंटिटी ने दी है तो हम दोनों को एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। सो इन दिस केस हमारी टोटल बोरोइंग 65 करोड़ और उसमें से 50 करोड़ की गारंटी हमारे लिए एच इनकॉर्पोरेशन ने लिए, तो मतलब हम यूआई और एच इनकॉर्पोरेशन क्या हो गए, डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। एंड सिमिलरली लोन की कंडीशन होती है दैट 50% और मोर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ असेट। सो हमारी बुक वैल्यू ऑफ असेट है 80, जिसका 50, जिसमें से 50 करोड़, सॉरी 180, जिसमें से 50 करोड़ हमको एक कंपनी ने लोन दिया है, दैट is 27.7%, which is not fulfilling the criteria. So यहाँ पर हमारी कंडीशन मीट नहीं हो रही है। जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू, हमने इस कंडीशंस को शुरू में ही चेक कर लिया, हो सकता है आगे काम आए। UI Limited imported turbo equipment worth 30 crores from H Incorporation. So we have already discussed that UI and H are associated, deemed associated enterprise by the virtue of the condition of your guarantee provision. So we have imported an equipment of 30 crores जिसपे हमने 4.5 crores की import duty पे करी है। Equipment was sold to T Limited on 40 crores, ठीक है। तो हमने 30 करोड़ का खरीदा, उस पे 4.5 करोड़ की import duty पे करी और 40 करोड़ में उसको बेच दिया, तो 5.5 crores का हमारा प्रॉफिट हुआ। Normal GP margin of UI in similar uncontrolled transaction is 20%, ठीक है। तो आपको जो कंपेरेबल डेटा दिया है टू कंप्यूट द आर्म्स लेंथ प्राइस,
वो आपको गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ यूआई लिमिटेड, तो हम सारा कंप्यूटेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? यूआई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नेट प्रॉफिट असेसमेंट ईयर 23-24 का 8 करोड़ है, आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑफ 6 करोड़, out of which 1.25 is pertaining to local borrowings, depreciation 2.5 crores and tax of 1.5 crores। तो अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो इंटरेस्ट हमने डेबिट किया है हमारी बुक्स में वो 6 करोड़ है, जिसमें से 1.25 करोड़ इज ऑन द लोकल बोरोइंग्स। ओके, मतलब हमने जो हमारा जो बाहर से बोरोइंग लिया है, मतलब जो यूएस एंटिटी से बोरोइंग लिया है जिस पर की गारंटी मिली हुई है, वो है टोटल 4.75 करोड़ का। So that means that in this case we have to consider that whether the applicability of different provisions is there or not. So the provisions of 94B have to be considered. चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। What is the amount of interest to be allowed in the computation of total income of UI Limited for the assessment year 23-24? If for AY 22-23 there was an interest expenditure disallowed to the extent of 4 crores under 94B। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 94B सेक्शन के बारे में। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ ईच ऑफ द सेक्शन व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर द रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव। सो हमको ये कहा गया है कि अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया है तो 30% ऑफ योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो आपकी अर्निंग है उसके 30% से ज्यादा का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो इंटरेस्ट आपका डिसअलाउ होता है इसको आप फर्दर आपके एक पीरियड तक आप कैरी ओवर कर सकते हो। सो 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, जैसे लॉसेस में होता है, और हर साल आपको 30% की कंडीशन देखनी होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ द लोन इज नॉट डायरेक्टली टेकन बाय एन एसोसिएट एंटरप्राइज, बट if the particular loan is guaranteed by an associate enterprise, then also it will be deemed that the loan is taken by an associate enterprise and the section of section 94B shall be applicable. In the given case, UI Limited ने जो लोन लिया है वो डायरेक्टली एसोसिएट एंटरप्राइजेस से नहीं लिया है, लेकिन जो गारंटी किया है लोन वो उसका एसोसिएट एंटरप्राइज है, and therefore this provision will be applicable in our case. So 94B हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हमारा अर्निंग दे रखा है हमको 8 करोड़, जिसमें कि सब कुछ माइनस हो चुका है, तो इसको हम एक बार ऐड बैक कर लेते हैं। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह सब कुछ, टैक्स, और ये सब ऐड करके हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो आया वो आता है 18 करोड़, जिसका 30% है 5.4, मतलब हम मैक्सिमम 5.4 करोड़ का क्या ले सकते हैं? डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट कंपोनेंट का एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ। 6 करोड़ में से हमारा जो 4.75 करोड़ है वो हमारा 94B के लिए कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज 1.25 इज लोकल बोरोइंग्स। सो 1.25 तो हम क्लेम कर ही सकते हैं। Now this 4.75 is within the limit of 5.4 and therefore यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पुराना कैरी ओवर है, जो 22-23 का कैरी ओवर है, उसको हम बैलेंस अमाउंट 30% तक जो डिफरेंस है उतना हम उसका क्लेम ले सकते हैं। सो 4.75 हमारे करंट ईयर का और 5.4 की हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है, जिसमें से 4.75 तो हमने करंट ईयर के इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज कर ली, तो 0.65 पुराना जो हमारा कैरी ओवर है उसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट हम क्लेम कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस, दैट विल बी 6.65 करोड़। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 6.65 करोड़। तो हमने दोनों चीजें कंसिडर करी, करंट ईयर प्लस जो ब्रॉट फॉरवर्ड है उनमें से जितना हमको बेनिफिट मिलेगा, दैट ऑल्सो वी हैव क्लेम्ड। Moving on to the next question, transfer pricing adjustment for the arm's length purchase price to be made in the computation of total income of UI Limited. Now, हमने जो इक्विपमेंट परचेज किया है वो हमने हमारी रिलेटेड पार्टी से परचेज किया है, एज इट इज गिवन। द परचेज प्राइस इज 30 करोड़, 4.25 हमने इसमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, सो टोटल हमारी जो परचेज प्राइस हो जाती है दैट इज 34.25 करोड़। द सेल प्राइस is 40 crores, which is to an unrelated enterprise, right? And they have given that the regular percentage of profit in uncontrolled circumstances is
20%, therefore 32 crores is, you can say, the purchase price इन केस ऑफ अनरिलेटेड पार्टी। 40 करोड़ में से आपने प्रॉफिट घटा दिया तो 32 करोड़ आता है आपका जो कॉस्ट होनी चाहिए थी। हाउएवर आपने इसको परचेज करा है 34.25 में, दैट मीन्स आपका जो एक्सपेंस है, सॉरी 4.5 है आई गेस, ओ सॉरी 4.5, so your total cost is 34.5. however it should be 32 if it is from unrelated, therefore you have shown extra expense of 2.5 crores as you have transacted with a related party, that is your associate enterprise। और क्योंकि इससे आपका खर्चा बढ़ रहा है, दैट मीन्स इससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा होगा, इतना आपकी इनकम में क्या कर दिया जाएगा, एडिशन। एंड एक एडिशनल बात हम ध्यान रखें, इसके अगेंस्ट आपको चैप्टर 6 से वगैरह के जो डिडक्शंस होते हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, राइट, 10AA वगैरह। सो 2.5 करोड़ का आपकी इनकम में क्या हो जाएगा, एडिशन, जो डिफरेंस है हमारी आर्म्स लेंथ प्राइस और ट्रांसफर प्राइस के बीच का। सो आर्म्स लेंथ प्राइस इज 32 करोड़, ट्रांसफर प्राइस इज 34.5 करोड़। सो हमारी इनकम बढ़ा दी जाएगी, जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो हट जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं रिपैट्रिएशन ऑफ द एक्सेस मनी। Now, if UI Limited repatriated the excess money on 31st of March 2024, what will be the interest income that would be added to its total income for assessment year 24-25 if SBI's 1 year marginal of lending rate is 11.25% on 1st of April 2023 and 10.25% on 1st of April 2024? Assume that UI Limited suo moto made the primary adjustment और रिटर्न उसने फाइल कर दिया है 30 नवंबर को। तो अगर हम एक्सेस मनी रिपैट्रिएशन के बारे में बात करें तो जो एक्सेस मनी है उसको आपको रिपैट्रिएट करना होगा, दैट इज बेसिकली योर 2.5 करोड़, जिस पर कि अगर आप 90 डेज के अंदर अंदर नहीं करते हो विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। ना देयर आर डिफरेंट केसेस, आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ द सुओ मोटो एडजस्टमेंट केस as that is relevant for the given question। so तब आपको 139(1) की ड्यू डेट से 90 दिन के अंदर अंदर रिपैट्रिएट करना है, अदरवाइज आपका जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज होगा, एसबीआई का 1 अप्रैल का जो MCLR है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, वो प्लस 3.25% अगर हमारा जो अमाउंट है वो INR में कैलकुलेट हुआ है तो। सो इन द गिवन केस हमारा जो भी कैलकुलेशन चल रहा है वो INR के हिसाब से चल रहा है, इंडियन रुपी में चल रहा है। सो हम 1/4/2023 का, दैट इज 1 अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 11.25% का रेट उठाएंगे। इसमें हमें जो एडिशन करना है एज पर द गिवन प्रोविजंस, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप मॉड्यूल से एक बार उसको रिवाइज करके फिर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सो आपका 14.5% का रेट बनेगा ऑन 2.5 करोड़ और 122 डेज ये मैंने कैलकुलेट करके रखे हैं। तो 90 डेज के अंदर अगर हमने नहीं पे किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 90 डेज से ऊपर हो गया, 30 नवंबर 2023 से 90 दिन के अंदर अंदर हमें पे कर देना चाहिए था, जबकि हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, one very important point that they have given in this case is that the February is having 29 days। February जो आ रहा है वो 2024 आ रहा है हमारा, तो February 2024 जो है that is a leap year, therefore you have to compute it using 29 days। okay, so keep this in mind। आपको जो भी 24-25 के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके असेसमेंट ईयर से, आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको उसके ऊपर 29 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना रहेगा। सो लेट अस कैलकुलेट 1208333 इज आवर आंसर। लेट अस क्रॉस चेक दिस। 11.3 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, सो इंटरेस्ट निकालना है सिंपल, बस इसमें गलती कहाँ हो सकती है कि रेट कौन सा लगेगा, डेज कहाँ से काउंट होंगे, कितने डेज बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, वहीं पर हमारी गलती हो सकती है। इंटरेस्ट निकालना तो हम पता ही है, अमाउंट इंटू रेट इंटू डेज के हिसाब से आपने इंटरेस्ट निकाल लिया है ना। नाउ इफ UI लिमिटेड डिसाइड्स नॉट टू रिपैट्रिएट, ये भी प्रोविजन हमने पढ़ा हुआ है,
अगर आप रिपैट्रिएट नहीं करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है आप एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दो उस अमाउंट के ऊपर, और एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है आपको 20.9664% से। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने पहले से ही आपके रेफरेंस के लिए नोट करके रख दी है। सो 20.9664 अगर हम उससे चाहें तो हमको रिपैट्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमको एडिशनल टैक्स दे देना है 20.9644%, और इसको हम, so my answer is 5241600, that is 52,41,600, which is the correct answer as well. So हमने क्या बोला उन्होंने कि अगर आप एडिशनल टैक्स नहीं पे करना चाहते हो, इंस्टेड पे एडिशनल टैक्स, सॉरी रिपैट्रिएट नहीं करना चाहते हो, एडिशनल टैक्स पे करना चाहते हो ऑन द एक्सेस मनी, तो एक्सेस मनी पे मैंने रेट लगा दिया एडिशनल इनकम टैक्स का, और हमारा एडिशनल इनकम टैक्स का अमाउंट आ गया। सिंपल था ये वाला ऑब्जेक्टिव एकदम ही। 11.5, if UI Limited decides to pay the additional income tax on 15th of March, should interest be carried? If so, what would be the amount of interest? और rate आपको दे रखी है 11.25 और 10.25. Now keep one thing in mind. एडिशनल मनी अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसके ऊपर एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो हमको 90 दिन का टाइम दिया था, है ना, हम 90 दिन पार होने के बाद ये सोच रहे कि यार एक काम करते हैं, रिपैट्रिएट करने की जगह इस पे एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देते हैं। तो क्योंकि हमारा टाइम लिमिट निकल चुका है, हमको जब तक हमने एडिशनल इनकम टैक्स पे नहीं किया तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके आगे हमारा इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा जैसे ही हम एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देंगे। सो इन दिस केस हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के 15 दिन, इतने पीरियड का हमको इंटरेस्ट कंपल्सरीली पे करना है 106 डेज। सो निकाल लेते हैं 2.5 करोड़, रेट वही रहेगा, ऊपर कितना परसेंट था 14.5%, क्योंकि रेट हमारे इस केस में भी उन्होंने चेंज नहीं करे हैं। अगर कभी ये चेंज हो जाए तो फिर आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, बट नॉर्मली ऐसे में वो चेंज करते नहीं है, सेम ही केस स्टडी है। तो 14.5% इंटू 106 डिवाइडेड बाय 366. So the amount of interest that has to be paid is 1049863, exact match. So now this is the amount of interest that you have to pay. So basically, even if you decide to pay additional income tax, but because you have paid that after the delay, you have to pay interest up to that date, and then you can pay the additional income tax. Okay, so this much is the interest that you have to pay, 11.5. Let us check the answer. Okay, बढ़िया। लास्ट देख लेते हैं, छोटा सा है, थ्योरी है। इन एडिशन टू द फैक्ट्स गिवन इन द केस सिनेरियो, अज्यूम, मतलब इन एडिशन जो ऊपर है वो तो है ही, अज्यूम करते हैं कि 23 अगस्त को यूआई हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ टर्बो विद वाई लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी अनरिलेटेड, और प्रायर अग्रीमेंट है हमारा पहले से वाई का, मतलब जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका पहले से हमारे एक अग्रीमेंट है फॉर द सेल ऑफ सेम गुड्स टू के इनकॉर्पोरेशन, और UI Limited holds shares carrying 28% वोटिंग पावर इन के इनकॉर्पोरेशन। तो आपने पढ़ा होगा एक प्रायर अग्रीमेंट वाला केस होता है हमारे एसोसिएटेड और डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में, वो केस यहाँ पर एज इट इज अप्लीकेबल हो रहा है। सो देयरफॉर इन दिस केस जो UI इनकॉर्पोरेशन है उसमें के तो आएगा ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज में बिकॉज ऑफ द वोटिंग पावर, हाउएवर Y will also be considered to be a deemed associate or associate enterprise. So which of the following are associate enterprise or deemed associate enterprise of UI Limited? In this case H तो पहले से ही था, गारंटी की वजह से K और Y भी हमारे deemed associate enterprises हो गए। So हमारा जो आंसर हो जाएगा that will be 11.6 का H, K and Y will be associated or deemed associate enterprises of UI Limited. Okay, so these are the case scenarios or objectives of case scenario 11, a very good and comprehensive case scenario they have given, and yes it is very probable क्योंकि transfer pricing पे हमें questions आते ही हैं हर attempt में, so it is very important to pay attention to all these provisions. Solve it by your own first. If you have any issue you can surely watch this video, and in this video as well, or the provisions related to this video, if you have any issues, feel free to contact. All the best.